फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 9। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पिछले मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया हो तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। उनकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट नंबर 9। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। मॉक टेस्ट नंबर 9 ओनली ऑन माय चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, where did the 2018 Winter Olympics held? The correct answer will be option number C, South Korea. 2018 Winter Olympics was held in South Korea. Who was the first Indian to win an individual Olympic medal after independence? The correct answer of this question will be option number D, KD Jadhav. Who is the first Indian woman to join the International Olympic Committee? What was the mascot for the Tokyo 2020 Olympics? Friends, the mascot for the 2020 Olympics, Tokyo Olympics was Maritawa, and for the Paralympic Tokyo Olympic the mascot was Somiti. So don't get confused, Maritawa ओलंपिक का है और सोमिटी पैरा ओलंपिक का है, और टोक्यो ओलंपिक को 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। According to the Olympics, color of a 5 kg barbell plate is. So the answer is option number A, white. Headquarter of NATO is located at. Headquarter of NATO is located at. It is located in Brussels, the capital of Belgium. Question number 7. The headquarter of Red Cross is in. The correct answer of this question will be option number B, Geneva, Switzerland. So Red Cross is headquartered in Geneva. 3rd May is also observed as International Press Freedom Day. Option number C. 22nd of April is observed international as. 22nd of April is observed international as Earth Day. Which country is called Land of Thousand Islands? Which country is called Land of Thousand Islands? So Indonesia is called Land of Thousand Islands. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। World UFO Day is observed every year on. World UFO Day is observed every year on 2nd of July. Which of the following company has become the second company after Drugs Controller Generals of India hold for human critical trials? Zydus Cadila Healthcare Limited Company has become the second company after Drugs Controller General of India DCGI hold for human clinical trials. Which of the following states has become the first state to complete a door-to-door intensive public health survey? The correct answer of this question will be option number C. Jharkhand state has become the first state to complete a door-to-door intensive public health survey. Question number 14. Dudhwa National Park is located in which Indian state? The correct answer of this question will be option number C, Uttar Pradesh. Recently, ISRO's satellite has captured the image of Phobos
in the moon of Mars? फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आज रीजनिंग को एक्सप्लेन भी करूंगा साथ साथ में आप लोगों के डिमांड पे। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली who among the following has been honored with the 2020 Great Immigrants Honor in the US? C. Siddharth Mukherjee and Raj Chetty has been honored with the 2020 Great Immigrants Honor in the US. Who has been named as the India's most valuable player of 21st century by Wisden? रविंद्र जडेजा को हाल ही में 21 सेंचुरी में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। चलिए फ्रेंड, बताइए जल्दी आंसर इसका पढ़ के। इंदिरा मनी पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एनवॉय टू यूनाइटेड नेशंस बॉडीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनीवा। Question number 19. Who has been appointed as the Pakistan's first female Lieutenant General? So the correct answer will be option number C. Naigar Johar has been appointed as Pakistan's first female Lieutenant General. Question number 20. Recently, FIFA has approved the COVID-19 relief fund of $1.5 billion. Who is the president of FIFA, Federation International de Football Federation? The correct answer of this question will be your option number C. Gianni Infantino is the president of FIFA. फ्रेंड्स, फीफा आपको इसमें 2-3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फीफा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फेडरेशन इंटरनेशनल de फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा कब फाउंड हुआ, नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप नोट्स बना लीजिएगा। आई एम अगेन टेलिंग यू। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। हु इज़ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? हु इज़ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? सैमुअल हनीमन इज़ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। Who is the father of medicine? Who is the father of medicine? The correct answer will be option number D, Hippocrates. See friends, there is one error in the spelling. Hippocrates का स्पेलिंग गलत है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसका करेक्ट स्पेलिंग होगा HIPPOCRATES. So don't get confused. What is the normal blood sugar level of a human being? The correct answer of this question will be option number A, 120 to 150. I hope you all are enjoying. Which virus from the following is contagious for human beings? दिए गए वायरसों में से कौन सा कंटेजियस है ह्यूमन बींग्स के लिए? H1N1 is the correct answer, option number D. The fundamental unit of kidney is nephron. Which of the following is called the powerhouse of the cell? Very easy question. Mitochondria is known as powerhouse of the cell. Question number 27. Who is the founder of WWW? Tim Berners-Lee. Option number C is the correct answer. Question number 28. Which computer is known as father of all computer? Which computer is known as father of all computer? Charles Babbage computer is known as father of all computers. Which is the brain of computer? Which is the brain of computer? So CPU, central processing unit, is known as the brain of computer. So here is question number 30. Who got first Oscar award in India? Who got first Oscar award in India?
The correct answer of this question will be option number A. Bhanu Athaiya got the first Oscar award in India. Question number 31. Tokyo Olympics 2020 has been postponed to which year? The correct answer will be option number C. 2021. Tokyo Olympics 2020 has been postponed to 2021. Question number 32. 2019 South Asian Games was held in which country? The correct answer of this question will be option number C. Nepal. Nepal country hosted the 2019 South Asian Games. Let's move on to next question. Question number 33. Who received Polly Umegar Award by BCCI, Board of Control for Cricket in India? The correct answer of this question will be option number C. Jasprit Bumrah. Which Grand Slam tennis tournament of 2020 has been cancelled? The correct answer of this question will be option number A. Wimbledon Open. Who won the Spirit of Cricket Award 2020? The correct answer of this question will be option number A. Virat Kohli. Virat Kohli won the Spirit of Cricket Award 2020. Question number 36. Thomas Cup and Uber Cup is related to which game? Very easy question. You all might be knowing. The correct answer of this question will be option number A. Badminton. Friends, I am moving quite fast because it will take less time and it will be easy for you to watch the full video. फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलिएगा. आपको और ऐसी मॉक टेस्ट में लाते रहूँगा. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब क्वेश्चन नंबर 37. हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकिंगडम? ये रिसेंटली बनाया गया है मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा को. Who won World Games Athlete of the Year award? Who won World Games Athlete of the Year award? The correct answer of this question will be, friends, any guess? The correct answer of this question will be option number D. Rani Rampal. Rani Rampal, option number D, has been appointed as the World Games Athlete of the Year award. Rani Rampal is the Indian women's hockey team captain. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 39. Who won the Player of the Tournament Award 2019 in IPL? Who won the Player of the Tournament Award 2019 in IPL? बताइए फ्रेंड्स, IPL तो बहुत देखते हैं. इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. एंड्रयू रसल वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड. एंड्रयू रसल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला था 2019 के वीवो IPL में. हु इज द चेयरमैन ऑफ ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? शशांक मनोहर इज द चेयरमैन ऑफ ICC और ICC का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मनु साहनी. ICC कब फाउंड हुआ था ये आप लोग ढूंढ लीजिएगा. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 2021 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? 2021 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय न्यूजीलैंड. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 42. 2022 वुमेन्स एशियन कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? The correct answer of this question will be option number D, India. Which film won the award for the best film at the 63rd Filmfare Award held in 2018? The correct answer of this question will be option number C. Hindi medium film won the award for the best film at the 63rd Filmfare Award held in 2018. Question number 44. Who was the first Indian actress to receive the Padma Shri Award? The correct answer of this question will be option number C. Meena Kumari was the first Indian actress to receive the Padma Shri Award. ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 45. Which was the first 3D movie in India? The correct answer of this question will be option number C. My Dear Kutti Chatan. फ्रेंड्स, अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ.
सो लेट्स स्टार्ट विद द रीजनिंग क्वेश्चंस। एक्सप्लेन करते चलूँगा साथ में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये आपका पहला रीजनिंग का क्वेश्चन। ये तो इजी है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। AZGTMN-YB। फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ पहले चलते हैं। देखिए ए दिया है आपका सबसे पहले, ABCDEFG, मतलब आपका ए से जी तक कितना गैप है, +5 का। ठीक, A to G। अब जेड से टी की तरफ चल लेते हैं। अब अगर आप जेड से टी की तरफ काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेड में -5 करेंगे तो आपका टी आ जाएगा। मतलब जैसे जेड के पीछे जाएंगे 5 तो आपका टी आएगा। जैसे चेक कर लीजिए, टी के बाद क्या आता है, TUVWXYZ आता है, मतलब बीच में 5 गैप है। वैसे ही आप टी में +5 करेंगे तो एम आएगा, सॉरी जी में +5 करेंगे तो एम आएगा, और टी में -5 करेंगे तो एन आएगा। वैसे ही आप अगला फिलिंग द ब्लैंक्स निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ASH। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन यू एज सुन एज पॉसिबल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। हॉर्स, गैलोप, डक क्या करता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बता दो आपका, इसका वेडल हो जाएगा। गैलोप, हॉर्स क्या करता है, गैलोप करता है, मतलब तेज़ी से भागता है, उसके दोनों पैर हवा में रहते हैं। तो डक कैसे भागता है, डक वेडल वेडल कर करके भागता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, वेडल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48। द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इन द अल्टरनेटिव इज प्रोवाइडेड बिलो इन ईच क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल में नहीं अरेंज करना है, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करिए। ये तो शायद आप लोग कर ही लेंगे। डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट, टाउन, सिटी, चेक करते जाइएगा। जैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। पहले आप इसको ऑप्शन वाइज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखें तो दिया है 2 मतलब पहले आ जाएगा विलेज। 4 फिर दिया है ऑप्शन नंबर ए में, 2 के बाद क्या दिया है, 4। विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज। फ्रेंड्स तो आपका ऐसे चेक कर लीजिएगा। इस आंसर को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कुछ आप भी करो यार, सब चीज़ मैं ही नहीं करके दूंगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सैम रैंक 9 फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको। चलिए फ्रेंड्स आपको मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको सॉल्व। सैम रैंक 9th फ्रॉम द टॉप। सैम की रैंक क्या थी, ऊपर से 9th थी, नीचे से क्या थी, 38। ठीक फ्रेंड्स, सैम की रैंक ऊपर से 9 थी, नीचे से 38 थी। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास में कितने थे। तो फ्रेंड्स इसका एक सिंपल फार्मूला है, ऊपर से कितने थे
9, नीचे से कितने थे 38। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा 9 8 7, 7 का 9 को 8 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 मतलब 7, तो आपका हो जाएगा उसको ऐड करने के बाद 47 हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें क्या करना है, आपको -1 कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 47 में 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 46। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला है आपका n-1। n क्या होता है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ऊपर में और नीचे में, और -1 इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बीच में एक ही डिजिट को एक ही रैंक वाले बच्चे को ऊपर से भी काउंट कर लिया गया है और नीचे से भी काउंट कर लिया गया है, इसलिए -1 किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 46, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वर्ड विल अपीयर थर्ड इन द डिक्शनरी? विच वर्ड विल अपीयर थर्ड इन द डिक्शनरी? फ्रेंड्स ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आप बताइएगा मेरे को सॉल्व करके। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है और कौन सा वर्ड इसमें से थर्ड नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल में आप अरेंज करिएगा। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए आप तीनों में देख सकते हैं शुरू का 4 वर्ड तो सब में सेम है। अब चेक करिएगा 4 वर्ड के बाद मतलब COLL के बाद क्या है, पहले वाले में O है, फिर E है, फिर I है, फिर नीचे वाले में भी I है। तो सबसे पहले क्या आता है वो फर्स्ट रैंक पे हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आता है वो सेकंड रैंक पे। ऐसे ही करते करते आपका थर्ड में कौन सा वर्ड आएगा आप वही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स select the words which cannot be formed using the letter of the given word. Administration. From the given alternative words select the word which cannot be formed using the letter of the word given. Administration. फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए अब आपको मैं भी समझा दूँ इसका भी आंसर। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं फ्रेंड्स। आपको दिए गए वर्ड्स में से कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं होगा ये पूछा है। पहली बात तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आंसर देने से पहले। इसमें पूछा है कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। अब चेक करिएगा एक एक करके, आपको ऑप्शन वाइज चेक करना है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, स्ट्रेन। आप देख सकते हैं STRAIN मतलब स्ट्रेन तो फॉर्म हो गया। ऐसे ही आप ट्रेडिशन के लिए चेक करेंगे, फिर सिचुएशन के लिए चेक करेंगे, फिर राशन के लिए चेक करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24। अब अगला 2 डिजिट आपको बताना है। लगाइए फ्रेंड्स दिमाग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अब आपको समझा देता हूँ मैं भी ये क्वेश्चन को। ये आप लोग के डिमांड पे मैंने समझाना चालू किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 3 में +5 ऐड करेंगे, 3 में +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। फिर आप 8 में +2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 10। फिर आपको +5 ऐड करना है, 10 में +5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 15 में आप +2 करेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 17 में +5 करेंगे 22 हो जाएगा। फिर 22 में +2 करेंगे तो 24 हो जाएगा।
मतलब फिर 24 में आप +5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 29। ठीक फ्रेंड्स, अब 29 कौन कौन से ऑप्शन में दिया है? बी सी डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब बचा 3 ऑप्शन। अब 29 के बाद आपको क्या करना है? +2 करना है। 29, 30, 31। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 29 एंड 31। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 29 एंड 31। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोपाल इज शॉर्टर देन कृष्णा, मोहन इज टॉलर देन गिरिधर, गोपाल इज टॉलर देन मोहन, कृष्णा इज शॉर्टर देन मुरली, हु इज द टॉलर एंड द शॉर्टर इन सीक्वेंस। ये तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा, बताइएगा आंसर इसको। ये समझाने की ज़रूरत नहीं लगेगी मुझे लगता है। फ्रेंड्स आंसर जरूर दे के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। EPGIJK, तो MNO के बाद क्या आएगा? फ्रेंड्स ये अल्फ़ाबेटिकल वाला क्वेश्चन है, आपको इसको कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। आप काउंट करके देख सकते हैं। ई के बाद क्या आता है? आई कितने बार में आता है? ई के बाद आता है FGHI, ठीक। फिर पी के बाद क्या आता है? जे कितने गैप में आता है? फिर जी के बाद के कितने गैप में आता है? वैसे ही आपका MNO का भी आंसर आएगा। ये भी आप ही सॉल्व करिएगा, ये इतना इजी क्वेश्चन को मैं नहीं समझाऊंगा। फ्रेंड्स यार इतना इजी क्वेश्चन डायरेक्शन वाला तो कर ही लोगे। राजेश गोज 100 मीटर ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर अगेन एंड टर्न्स लेफ्ट, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग। इसमें तो कुछ पूछा भी नहीं है, पाइथागोरस भी नहीं लगाना है, खाली डायरेक्शन बताना है। चलो बताओ आंसर इसका कमेंट सेक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, द रिलेशनशिप दैट स्केलेटल हैज़ विद द बॉडी, द सेम रिलेशनशिप ग्रामर हैज़ विथ। स्केलेटल किस में होता है? बॉडी में होता है ना। द सेम रिलेशनशिप ग्रामर किस में होता है? ग्रामर लैंग्वेज में करेक्ट करने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज। ये आपके वोकेबुलरी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना समझते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, JWPLWQ इज रिटर्न इन प्लेस ऑफ फेमस, देन व्हाट विल बी रिटर्नड इन प्लेस। फ्रेंड्स देखिए यहाँ एक एरर है, यहाँ आपका रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न लिखा गया है, यहाँ पे आपका होगा WRITEN, रिटर्न हो जाएगा आपका, रिटर्न नहीं होगा। मतलब आपका JWPLWQ की जगह लिखा है फेमस, तो रिटर्न तो MIRACL के जगह पे क्या लिखा जाएगा? फ्रेंड्स ये भी आपका अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, इसको आपको कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, रोड इजिकल्स टू 24, तो लेन का कितना हो जाएगा? बताइए फ्रेंड्स, कंफ्यूज हो गया ना इसका आंसर? इसका हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, सॉल्व आप करिएगा। रोड का हो जाएगा आपका आर, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट में आता है? RODE 24 होगा। लगाइए फ्रेंड्स, इसको भी आपको करने देता हूँ, लगाइए दिमाग। अगर नहीं समझ में आएगा तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगा। थोड़ा आप भी एफर्ट मारिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। सी द फिगर। फ्रेंड्स यहाँ पे एक एरर आ गया है इस क्वेश्चन में, फिगर मैंने लगाना डिलीट हो गया गलती से। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले मॉक टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन ज़्यादा करा दूंगा, कोई बात नहीं। इफ़ 18 पर्सन कैन फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इन 40 days, देन हाउ मैनी पर्सन्स आर नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द
बिल्डिंग इन 24 डेज। अगर 18 पर्सन एक बिल्डिंग को 40 दिन में खड़ा कर सकते हैं तो कितने व्यक्ति उसी बिल्डिंग को 24 दिन में खड़ा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका है वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन, थोड़ा मैथ्स वाला लगाना पड़ेगा इसमें दिमाग। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको करके दिखा रहा हूँ पिक्चर में, आप देख सकते हैं। आप थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इन 40 डेज कंप्लीट द वर्क। 40 दिन में कितने 40 डेज में काम किए 18 व्यक्ति, तो एक बिल्डिंग खड़ा हुआ। अगर वो 24 दिन में काम करेंगे तो कैसे करेंगे, 40 डेज इंटू डिवाइडेड बाई 18 पर्सनस डिवाइडेड बाई कितना फाइंड करना है 24 दिन का, तो 24 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 30 पर्सनस। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30। तो फ्रेंड्स, आज का मॉक टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। तो फ्रेंड्स, वी आर डन टुडे। आपको और मॉक टेस्ट ऐसे ही चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स,